Hey guys, hi. This is Abhishek, Master Teacher of Physics at Vedantu. How is it going on, guys? Thank you so much for your amazing responses in the previous video. And in the previous video, we covered gravitation in just 30 minutes, which was not even, it was great. And it was not only helping the 9th standard students, but also it was helping the NTSC students also. So all my 10th standard students who are giving their NTSC this year, if you guys want to have a very quick revision of the 9th standard syllabus, you can check out those videos. And today's video is also related to some or the other topic, which will help you 9th standard student for your midterms and the 10th standard students for their NTSC preparation. And today's topic, my dear students, is going to be as a part of Umang series, which is going on for 9th, 10th for everyone. The topic is going to be forces and laws of motion. So the same way we finished gravitation entirely in 30-40 minutes, today's chapter, that is forces and laws of motion, will finish it off in 15-20 minutes. That's it. Because the chapter is so damn small and the concepts are cut to the point. ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है हम 15-20 मिनट के अंदर खत्म कर देंगे. पूरा चैप्टर का जो माइंड मैप है वो पढ़ेंगे आज हम. ठीक है, सो टुडे देयर आर गोइंग टू बी मल्टीपल थिंग्स कमिंग टुवर्ड्स यू. नंबर 1 इज व्हाट इज द क्रक्स ऑफ दिस चैप्टर. इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं एंड वेयर यू गाइस हैव टू फोकस द मोस्ट. सबसे ज्यादा मार्क्स कहां से आएंगे, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आज आपको दूंगा. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा आपको. वो सारी चीजें 15-20 मिनट के अंदर पूरे चैप्टर का हो जाएगा. ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी आर गोना डू टुडे गाइस. एंड इफ इन केस till now you don't know me and you guys are new to the channel, my name is Abhishek. I'm the master teacher of physics at Vedantu. I handle 8th, 9th, 10th, 11th grade JEE sessions for physics. ठीक है, and apart from that I'm also the proud inventor of the course Rocket Pro, which is the only online practical learning course for aero modeling and as well as rocket modeling at Vedantu as well as in India. ठीक है, so when I'm launching the Rocket Pro course, I'll do let you know when I'm launching. But apart from that, let's get in today. And if in case you are new to these sessions, guys, before the session starts, I'm pretty sure that there will be a lot of likes already being there. Thank you so much for that. Thank you so much for all your love. I really wish that I could be live there again. I say this in my every video, लेकिन हो नहीं पाता है. I'm really sorry, but your learning is not going to be hampered anyway. Don't worry at all. जैसे gravitation गया था, वैसे हम force and laws of motion को भी संभाल लेंगे. ठीक है, एंड ऑल्सो इफ यू गाइज लव द वीडियोस, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर द वीडियोस. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना. पिछले वीडियो को आपने बहुत सारे शेयर किए थे, इस वीडियो को भी शेयर करना क्योंकि बहुत हेल्पफुल वीडियो है. उसके अलावा सब्सक्राइब, अगर आप नए हो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. एंड ऑल्सो हिट दैट लाइक बटन, ऑल्सो हिट दैट बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड अबाउट ईच एंड एवरी वीडियो बीइंग लॉन्च्ड. और बच्चों, और हर दिन हम 9th स्टैंडर्ड के लिए वीडियोस निकालते हैं फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स आउट देयर. तो कोई भी चिंता हो, वेदांतु का चैनल है, आके पढ़ लेना आप लोग. ठीक है, वी आर कवरिंग ऑल दी चैप्टर्स इन द मोस्ट अमेजिंग वे पॉसिबल. ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं. And as always, we'll be starting this session with a very beautiful quote, and the quote for all of you guys is here. In the end, we only regret the chances we didn't take. तो ऐसा कोई भी चांस मत छोड़ना जो आपको अंदर से फीलिंग होती है कि ले लेना चाहिए था. Don't leave out any chance which you think that I should have taken in your life. Always be confident in yourself and just keep going ahead. ठीक है बच्चों? On that happy note, and for the love of Batman, let's go ahead and start today's session. All the Batman fans, do let me know in the chat and also in the comment section कि कितने बच्चे Batman के fans हैं. ठीक है, do let me know. Okay, let's go forward right now, guys. चलो, ये रहा हमारा माइंड मैप. This is our mind map for the chapter Forces and Laws of Motion. पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पे इस पर्टिकुलर पेज पे है. तो इसके हर एक सेक्शन को हम तोड़ के प्रूव करेंगे. ठीक है, तो पहला रेड वाला सेक्शन, पहले मतलब यहां से स्टार्ट करेंगे, फिर इस पे आएंगे, फिर इस पे आएंगे, फिर इस पे आएंगे. तो पूरा सेक्शन कर देंगे. और 4 सेक्शन, जैसा देख सकते हो 4 सेक्शन इस चैप्टर का. मेजर 4 सेक्शन है. मैं 4 भी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि मेजर 3 सेक्शन है. पहला फोर्स क्या होता है, लॉज ऑफ मोशन क्या होते हैं, और कंजर्वेशन, और आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है. बस ये 3 मेजर सेक्शन है. चौथा जो सेक्शन है वो आपके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा ताकि आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाए, इसलिए मैंने डाला हुआ है. ठीक है, तो टोटल 4 सेक्शंस होंगे. उस 4 सेक्शंस को बांट के इजीली कर लेते हैं. ठीक है, चलते अभी हमारे सबसे पहले सेक्शन में. और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें बच्चों मैं आपको नोट डाउन करने के लिए बोलूंगा, ये जो नोट्स है वो भी आप डाउनलोड कर ही सकते हो. ठीक है, तो बिल्कुल चिंता नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बोल रहा हूं उसको नोट डाउन जरूर करना. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज अ फोर्स. फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में जो पहला पार्ट है वो है फोर्स का. और पूरा चैप्टर में जो भी फोर्स के बारे में पढ़ा है वो यहां पे है, पूरा का पूरा यहां पे. ठीक है, सो व्हाट इज अ फोर्स. I'm pretty sure you already know. आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है कि फोर्स क्या होता है. फोर्स इज नथिंग बट अ पुश और अ पुल. अ पुश और अ पुल और अ हिट टू एनी ऑब्जेक्ट would be called as a force. Correct ना? And I'm pretty sure कि many of you guys might have
experience real force from your parents or from your friends and everything. जब लात पड़ती है, जब थप्पड़ पड़ता है, तो पता ही होगा कि फोर्स क्या होता है, एक्सपीरियंस किया है ना, उसी को हम कहते हैं फोर्स. ठीक है. सो एनी पुश और पुल और अ हिट एक्टिंग ऑन अ बॉडी विल बी कॉल्ड एज अ फोर्स. ठीक है. तो अब इसकी फोर्स के बारे में बात करिए तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, सब जानते हैं. फोर्स का ऐसा यूनिट होता है आपका न्यूटन. करेक्ट. फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, ये भी जानते हैं. करेक्ट. तो ये हुआ इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हो गया न्यूटन, जिसको डिनोट किया जाता है कैपिटल एन से. ठीक है. अब व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फोर्सेस. बेसिकली टाइप्स ऑफ फोर्सेस होते हैं दो प्रकार के. क्या क्या है. पहला होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, जो आपने पढ़ा होगा 8th स्टैंडर्ड में. अगर शायद थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है तो याद कर लेना, एनटीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, 9th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके अलावा होता है आपका ऑब्वियसली नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बच्चों. सिंपल सी बात है, ऐसे फोर्सेस जो कॉन्टैक्ट के थ्रू होते हैं, दैट आर कॉन्टैक्ट फोर्सेस, एंड दोज फोर्सेस व्हिच कैन बी अप्लाइड विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट will be called as non-contact forces. Now you might be troubled कि ऐसे कौन से फोर्स है जो हम छुए बिना कर सकते हैं. बताता हूं. अब देखो, पहले कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पढ़ लेते हैं. कॉन्टैक्ट फोर्स का पहला टाइप होता है मस्कुलर फोर्स. ये क्या मस्कुलर फोर्स है. ये वो फोर्स है विच वी अप्लाई टू एनी ऑब्जेक्ट. हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, उससे पहले सबसे पहले छुएंगे. We have to be in contact with the object to apply force. For example, if I need to lift this remote here, I need to touch it. Otherwise, मैं मैग्नेटो नहीं हूं कि मैं इसको ऐसे करूंगा और मेरे पास आ जाएगा, नहीं है ना, राइट. सो इट हैज टू बी लिफ्टेड, एंड फॉर टू बी लिफ्टेड इट हैज टू बी टच्ड अपॉन, इट हैज टू बी इन कॉन्टैक्ट. तो और इसको उठाने के लिए मैं कौन सा फोर्स अप्लाई करता हूं, मेरे मसल्स का, मेरे मस्कुलर फोर्स अप्लाई करता हूं मैं. सो वेन एवर ह्यूमन बींग्स और एनी अदर लिविंग ऑब्जेक्ट, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू पुश एनी ऑब्जेक्ट और पुल एनी ऑब्जेक्ट, द पर्सन हैज टू अप्लाई अ कॉन्टैक्ट फोर्स, एंड दैट कॉन्टैक्ट फोर्स कम्स आउट टू बी द मस्कुलर फोर्स. ठीक है. कॉन्टैक्ट फोर्स का एक और टाइप होता है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग से एग्जांपल है, आपको पता भी होगा, जिसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स. करेक्ट. फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है. फ्रिक्शन इज नथिंग बट दी force which opposes the motion of an object. Correct. Frictional force is the force which opposes the motion of an object. Correct. Basic सा एग्जांपल है, बेसिक सा डेफिनेशन भी है. opposes the motion of any object, यानी कि ये ऑब्जेक्ट यहां पे है, ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो मेरे हाथ उसको फ्रिक्शन दे रहे हैं. सो फ्रिक्शन होने के लिए बहुत ही सिंपल सी बात है, दो ऑब्जेक्ट्स का कॉन्टैक्ट होना बहुत जरूरी. बोथ द ऑब्जेक्ट्स मस्ट बी इन कॉन्टैक्ट सो दैट द फ्रिक्शनल फोर्स कैन एक्ट. सही ना. अगर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा है विदाउट कॉन्टैक्ट, दैट इज नॉट फ्रिक्शनल फोर्स एट ऑल. समझ में आ रहा है. अगर मैं चल रहा हूं, मेरे पैरों और ग्राउंड में कॉन्टैक्ट है, टच है, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स है. अगर मैं हवा में उड़ रहा होता तब मेरे और ग्राउंड के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होता, लेकिन मेरे और हवा के बीच में फ्रिक्शन होता, क्योंकि हवा मेरे साथ कॉन्टैक्ट में, द एयर इज इन कॉन्टैक्ट विथ मी, सो उसको बोलेंगे एयर फ्रिक्शन. सो बेसिकली फ्रिक्शनल फोर्स कैन नॉट हैपन विदाउट अ कॉन्टैक्ट, देयर शुड बी अ कॉन्टैक्ट. तो हो गया फ्रिक्शनल फोर्स. तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स. अब बात करते हैं उन फोर्सेस की जिनको कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं होती है. सबसे पहला एग्जांपल मैं लूंगा ग्रेविटेशनल फोर्स का. ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे, इट्स द मोस्ट इजी एग्जांपल फॉर दिस. ये पेन है, ये इसको मैंने छोड़ा तो कहां गया, शिट, नीचे गया. ऑसम. क्रिकेट खेले बहुत दिन हो गए बच्चों, रिमोट टूट जाता है. उम्मीद है पैसे मुझसे ना लिया जाए इसके लिए. आई होप यू गॉट दी पॉइंट. आई होप यू गॉट दी पॉइंट कि क्या हो रहा है यहां पे. सर समझ में आया. लगा दूं पहले, लग गया. और एक बार ट्राई करता हूं. फ्रिक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स पकड़ लिया. ओके. सो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. सही में समझ में आया. क्योंकि जब मैंने पेन को नीचे गिराया, अर्थ वॉज नॉट इन कॉन्टैक्ट विद द पेन. वॉज इट? नो. बट द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स पुल द ऑब्जेक्ट डाउन. कैसे? विदाउट एनी कॉन्टैक्ट. So this is called as an example of non-contact force, is a gravitational force. उसी तरह आपको पता होगा मैग्नेटिक फोर्स के बारे में. मैग्नेटिक फोर्स सबको पता है, दो मैग्नेट उठाओ, मैग्नेट अपने आप खींचे चले जाएंगे या तो रिपल होंगे विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट. दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फोर्स एंड दैट इज ऑल्सो एन एग्जांपल, अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ योर केस ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. उसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में जो फोर्स होती है, जैसे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स होती है, वो कैसे फोर्स होती है? वो भी नॉन कॉन्टैक्ट होती है. कैसे? पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करती है. लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. ये हम जानते हैं. कैसे? कॉन्टैक्ट में है वो नहीं, फिर भी होता है. सो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और वो फोर्स भी नॉन कॉन्टैक्ट होती है. सिंपल सा डेफिनेशन ऑफ फोर्स इतना ही है. ठीक है. आई होप यू गाइस गॉट दी पॉइंट. ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डेफिनेशन ऑफ फोर्स क्या होता है. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स एंड व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स. वो 1 मार्क के क्वेश्चन में आप लोगों को आता है.
फिर आता है टाइप्स ऑफ फोर्सेस, जो अगेन एक मास का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो ये हो गया मेरे बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब सब लोग कॉन्सेंट्रेट यहां पे। द नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिक यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फ्रॉम विच यू कैन गेट न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल किए जाने वाले वेरी इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर्स हैं, उनके यूनिट्स और वैल्यूज अभी हम समझ लेते हैं एक बार। ठीक, जल्दी से, बहुत ही सिंपल सा चीज है। तो मास एंड वेट के बारे में तो आप जानते हो ग्रेविटेशन पार्ट से ही, मैं एक और बार रिवाइज करवा देता हूं आपको। तो मास क्या होती है, मास और वेट के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके बाद न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन पढ़ेंगे, और न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन में मास, वेट और मोमेंटम का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, राइट ना। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, जो नथिंग बट मेजर ऑफ मास होती है, मेजर ऑफ इनर्शिया इज मास। उसके बाद होती है वेट, जिसका इस्तेमाल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स में। फिर होता है मोमेंटम, मोमेंटम का इस्तेमाल होता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। तो सब जगह में इन तीन क्वांटिटी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है, बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। दैट्स द रीजन व्हाई वी गोना स्टडी दिस पर्टिकुलर थिंग सेपरेटली। कूल, सो लेट्स स्टार्ट विद द मास पार्ट। What is the SI unit of mass? Obviously kg. SI unit of mass is kg. What is the इसको पढ़ने की जरूरत नहीं आपको, इसको गोली मारो आप। कन्वर्जन क्या होगा, 1 kg is equal to 1000 grams. डायमेंशंस पढ़ने की जरूरत नहीं फिलहाल आपको, वो आप 11th में पढ़ोगे, ठीक है। तो SI unit of mass is kg and conversion is 1000 grams. And what is the definition of mass? What is the definition? Mass is nothing but the measure of inertia of that object. करेक्ट, आई एम प्रीटी श्योर कि आपको पता है कि इनर्शिया क्या होती है, राइट सबको पता है इनर्शिया क्या होती है। व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट मोशन, एंड मेजर ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट मास। आपके अंदर कितनी इनर्शिया है वो आपका मास होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पे खड़ा हूं और एक और इंसान खड़ा है, आप खड़े हो यहां पे, यू आर स्टैंडिंग राइट हियर नेक्स्ट टू मी, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि यू विल बी समवेयर हियर, यू माइट बी टॉलर देन मी और स्मॉलर देन मी, बट आई एम प्रीटी श्योर कि आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू, होपफुली, ठीक है। सो इट विल बी रियली डिफिकल्ट फॉर यू टू मूव मी. It will be very difficult for you to move me because I'm heavier than you, right? So I have more mass. And what is inertia? Inertia is the tendency or the property of an object to resist motion. If I'm at rest, I want to be at rest. If I'm at motion, I want to be at motion. So if I'm standing at rest, the more the heavy I am, it is difficult for you to move me because of inertia. But since you are lighter, my push might make you fall down, right? So that is because you're lesser in weight, your mass is less. So the amount of inertia you have is the mass you have. I hope you got the point. ठीक है? So that is nothing but your mass, my dear students. So measure of inertia of an object is nothing but the mass. Mass is measured in inertia. ठीक है? Cool. अब आगे बढ़ते हैं. Now let's come to the weight part. Weight part you have already studied in the gravitation chapter. But anyways, what is weight? Weight is nothing but the gravitational force of Earth on any object. That is the definition of weight. I hope you all remember. What is weight? Weight is gravitational force or gravity of Earth on all of us. That is your weight. करेक्ट, मेरे ऊपर जितना ग्रेविटी एक्ट कर रही है उतना मेरा वेट हुआ, करेक्ट। और हम सब जानते हैं कि वेट इज अ फोर्स, वहां पे लिख दिया वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। सो व्हाट कुड बी द SI यूनिट ऑफ दैट? SI यूनिट वुड बी ऑब्वियसली न्यूटन्स, व्हिच इज आल्सो गिवन एज kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर. kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज आल्सो द आंसर. व्हाई? क्योंकि वेट का फॉर्मूला आप सबको याद होगा, इट इज नथिंग बट m इंटू g. यही वेट है, तो m क्या हुआ kg, g क्या होता है, g होता है आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन की तरह, ये भी हम जानते हैं, ठीक है। बस इतना ही है। और हाँ, अब आगे बढ़ते हैं टू मोमेंटम वाला पार्ट। तो ऐसा हुआ कि इफ आई गिव यू अनदर एग्जांपल विद द सेम यू स्टैंडिंग हियर, इफ आई एम मूविंग विथ a mass here with a velocity, and then you are also moving with a mass and velocity, we both are moving at the same velocity, and we both are moving at the same velocity, but you have lower mass, I have higher mass, so it would be difficult for someone to stop me rather than you. सही ना? It will be difficult for someone to stop me rather than you. क्यों? हम दोनों का वेलोसिटी सेम था, लेकिन मास अलग है। उसी तरह अगर मैं एक बॉल फेंकू जोर से, ठीक है, अगर मैं एक बॉल फेंकू जोर से टू अ ग्लास, ऑन टू अ ग्लास, और आई जस्ट फायर अ बुलेट, what would happen? The bullet will pierce through the glass, the ball might not. Why not? The bullet was lighter than the mass, फिर भी चीर गया. Why did that happen? Because the velocity of bullet was higher than the ball. So what do we understand from this is, there is a relation between the mass and velocity. There is a relation between the mass and velocity. एक कोरिलेशन है, मास कम भी हो लेकिन वेलोसिटी ज्यादा है तो बहुत कुछ हो सकता है, अगर मास ज्यादा है वेलोसिटी कम भी हो तो बहुत कुछ हो सकता है,
राइट? सो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन मास एंड वेलोसिटी. तो अगर जब मैं मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करूं एक दूसरे के साथ, व्हेन आई टेक आउट द प्रोडक्ट ऑफ दिस मासेस, व्हाट डू आई गेट इज समथिंग कॉल्ड एज p, which is nothing but equal to momentum. That is, my dear students, the concept of momentum. इसी वजह से momentum concept उभर कर आया था साइंस में. ठीक है? दैट इज मोमेंटम इज नथिंग बट मास इनटू वेलोसिटी. और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? ऑब्वियसली क्या होगा? मास है तो केजी, वेलोसिटी तो मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड इज द राइट आंसर. ठीक है? सो दैट, माय डियर स्टूडेंट्स, वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरी बेसिक थिंग्स व्हिच यू ऑल शुड नो. कभी कभी एंड मोमेंटम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आउट ऑफ ऑल दिस. Mass and it is important for gravitation, but momentum is the most important topic in this particular chapter, क्योंकि उससे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आएगा और वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है बच्चों? आई होप यू गाइस गॉट द पॉइंट. ये क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स का. आपको न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं मोमेंटम से, जनरल मोमेंटम से, या तो कंजर्वेशन मोमेंटम से, दोनों से आपको न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं. ठीक है? सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. आई होप यू गाइस गॉट द पॉइंट. तो 2 सेक्शन तो हो ही गए यार. लेट्स गो फॉरवर्ड फॉर द थर्ड सेक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट ऑफ सेक्शंस. easiest of sections, क्योंकि सबको पता है कि न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन क्या होते हैं, हम पढ़ते आ रहे हैं. So if I go forward for the first law of motion, everyone knows the first law of motion is very simple, that every object continues to be in the state of rest or in motion, which is nothing but inertia, right? Every object wants to be at rest or in motion if the object is at rest or in motion, correct? अगर मैं रेस्ट पे हूं तो रेस्ट पे रहना चाहता हूं, अगर मोशन में हूं तो मोशन में रहना चाहता हूं. दैट इज इनर्शिया. सो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही कहता है कि ऑब्जेक्ट इनर्शिया को फॉलो करेगा until there is some unbalanced force acting on the body. So if there is someone pushing me, there is an unbalanced force on me. और बहुत बच्चे ना, like including me, when I was in 9th standard, I didn't focus much on unbalanced force there. So guys, what is an unbalanced force? I'm pretty sure you understand कि unbalanced force का मतलब होता है कि आपका जो net force है on the body is not zero. For example, if I have a box here, if I have a ball here, a person applies a force from this direction F, and another person applies the same force from this direction F. Is the object going to move? The answer is no. The object is not going to move. Why? Why? Because the forces are equal and opposite. तो क्या हो गया? ये बैलेंस्ड हो गया. एक फोर्स ने दूसरे फोर्स को काट दिया, राइट? वो बैलेंस्ड फोर्स हो गया. वैसे ही ऑब्जेक्ट कब मूव करेगा? जब इस साइड से मैं अप्लाई करूंगा 20 न्यूटन और एंड फ्रॉम दिस साइड आई अप्लाई द फोर्स ऑफ 40 न्यूटन. तो अब क्या हुआ? नेट फोर्स कितना हुआ ऑब्जेक्ट के ऊपर? नेट फोर्स हुआ इस डायरेक्शन में 40 है और इस डायरेक्शन में 20 है. सो सिंस दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, नेट फोर्स इज 40 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 20 न्यूटन. देखा आपने? The net force is not zero. The net force is 20 newtons. And 20 newtons in which direction? 20 newtons in this direction. So the object will start moving in this direction. So the object only starts moving or stops moving when there is an unbalanced force acting on the object. I hope you got the point. So that is what Newton's first law of motion states, that every object continues to be in a state of rest or in motion until and unless an external unbalanced force is applied on it. It's not necessary that you have to mention unbalanced in your definition, but that would be pretty awesome. Your teachers are going to be mind blown once you mention that. ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. सबको पता है बात, करेक्ट? सबको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. किसको नहीं पता है यार? सबको पता है, करेक्ट? आप चलते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ, जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन? ठीक है, वी हैव मूव्ड एन ऑब्जेक्ट नाउ. अभी हमने एक ऑब्जेक्ट को मूव कर दिया, ठीक है? वही बॉल है, 40 न्यूटन मैंने अप्लाई किया था, तो 20 न्यूटन के फोर्स से वो आगे बढ़ गया. हाउ मच डिड इट एक्सेलरेट? Once the object starts moving, the object can accelerate, can deaccelerate, something can happen, isn't it? How much did the object accelerate? We don't know. And that is when Newton gave out the second law of motion. Newton states that the rate of change of momentum of an object, that is, initially the momentum of the object, maybe it was pi, initial momentum. And then after you started moving the object, the momentum of the object became pf, that is a final momentum. Now what Newton says that is, this change in momentum which happened for the case of object, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हुई. ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट पे था, अब वो हिलने लग गया, तो वेलोसिटी चेंज हुई. तो यानी कि मोमेंटम चेंज होगा. कैसे? क्योंकि मोमेंटम मेरे बच्चों क्या है? मास इनटू वेलोसिटी है. तो वेलोसिटी जब चेंज होती है, मोमेंटम चेंज होगा. तो मिस्टर न्यूटन ये कहते हैं कि when the momentum of an object changes, I can relate it to force. How? He says that the rate of change of momentum, that is change of momentum by time,
रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को आप ये भी कह सकते हो कि चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, सेम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम. So Newton's second law of motion states that this rate of change of momentum is proportional to the force you applied on the object. अगर मैंने इतना फोर्स अप्लाई किया तो इतना मोमेंटम चेंज होगा, अगर मैंने इतना फोर्स अप्लाई किया तो इतना मोमेंटम चेंज होगा. इसका बहुत एक बेसिक एग्जांपल है जो मैं हर बच्चों को देता हूं. इमेजिन करो कि ये आप हो, ठीक है, और आप स्माइल कर रहे हो. यहां पे एक फुटबॉल रखा हुआ है, आपने पहले 10 न्यूटन से किक किया, 10 न्यूटन का फोर्स से किक मारा, क्या होगा, बॉल गया यहां तक. अब आप क्या करोगे, 30 न्यूटन के फोर्स से किक करोगे. सो व्हाट विल हैपन, द बॉल विल गो यहां तक. नाउ यू विल हिट 100 न्यूटन ऑफ फोर्स, क्या हुआ, बॉल जाएगा यहां तक. सो व्हाट यू नोटिस, एवरी सिंगल टाइम यू हिट, मोर द डिस्टेंस इज कवर्ड बाय द बॉल. दैट इज बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटेड मोर. जितना ज्यादा बड़ा किक उतना ज्यादा आपका ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन, उतना ज्यादा चेंज इन मोमेंटम. सही. तो इसी इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा और प्यार से लिखूं, इसी इक्वेशन को मैं थोड़ा और प्यार से लिखूं, क्या होता है देखते हैं. ठीक है, अब पूरे शिद्दत से देखना क्योंकि ये जो डेरिवेशन में करने वाला हूं वो काफी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो यहां पे देखो ध्यान से, चलो ठीक है, क्या है इक्वेशन, F इज इक्वल टू P2 माइनस P1 बाई T. दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ फोर्सेस एंड लॉस ऑफ मोशन के न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का फर्स्ट फॉर्मूला है, इसको नोट डाउन करो. सेकंड फॉर्मूला क्या होगा, लिखते हैं, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी. सो P2 इज इक्वल टू m इंटू V2, P1 इज इक्वल टू m इंटू V1. करेक्ट ना, मैं मास तो सेम है, बॉल तो सेम था, तो मास तो सेम है, मोमेंटम वेलोसिटी चेंज हुई. तो आई कैन टेक m कॉमन, व्हेन आई टेक m कॉमन इट विल बिकम V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई T. दिस बिकम्स द सेकंड फॉर्मूला फॉर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, नोट डाउन को अभी से, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. ठीक है, अब V2 माइनस V1 बाई T, व्हाट इज दैट, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम. फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम, व्हाट इज दैट, एक्सेलरेशन. सो F becomes equal to ma. This, my dear students, is the third most important equation for your second law of motion. अपार्ट फ्रॉम दैट ये तीनों जो फॉर्मूलाज है न्यूमेरिकल्स में अप्लाई होंगे, उसके अलावा ये जो डेरिवेशन मैंने किया ये आपको आता है 2 मार्क्स के लिए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. राइट डाउन द स्टेटमेंट एंड राइट डाउन द फॉर्मूला और डिराइव द फॉर्मूला फॉर सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ऐसे डिराइव करोगे. ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था. आई होप यू गॉट द पॉइंट. सो सेकंड लॉ ऑफ मोशन हो गया. Let's go forward for the case of third law of motion. What is third law of motion? सबसे easiest. Every action has an equal and opposite reaction. सबसे easy example होगा चलना, walk करना. रॉकेट का तो बहुत बड़ा example हो गया, चलने का example ले लो. When I push my leg backward, the floor gives me a push forward and I go forward. Many students are confused कि sir अगर every object has an equal and opposite force, so every action has an equal and opposite reaction, how is the object moving? That is because both the forces are applied on different objects. I hope you know that. I am applying the action on the floor. That's one object. So apply the action on the floor. Now the floor applies a reaction on me. I'm the second object. So the action and reaction are on two different objects, not on the same object. तो अगर मैं इसको सिंपल से बताऊं, अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है, if the action and the reaction are on the same object, then the object will not move. Agreed. लेकिन एक्शन रिएक्शन सेम ऑब्जेक्ट में नहीं होते हैं. एक्शन इसके ऊपर होगा. अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको स्क्रीन को धक्का मारना है तो मैं जैसे हाथ रखे धक्का मारूंगा मैं भी पीछे आता हूं ना. क्यों? क्योंकि मेरा एक्शन दीवार स्क्रीन पे है लेकिन स्क्रीन रिएक्शन मेरे ऊपर दे रहा है, इसलिए मैं पीछे आ रहा हूं. सिंपल ऐसा है. ठीक है बच्चों, आई होप यू गाइस गॉट दी थर्ड लॉ ऑफ मोशन ऑल्सो. बस दैट वॉज द थर्ड सेक्शन ऑफ टुडे. वी आर मूविंग ऑन फॉरवर्ड फॉर द फाइनल सेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, स्वीटली वेरी सिंपल, कॉल्ड एज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट. अब ये कंजर्वेशन मोमेंटम क्या है? बहुत इजी, बहुत इजी एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑल्सो. द स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कम्स फॉर 2 मार्क्स. कि कंजर्वेशन, डिफाइन एंड स्टेट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कम्स फॉर 2 मार्क्स. व्हाट इज द स्टेटमेंट? द मोमेंटम बिफोर द एक्शन and after the reaction remains the same, is conserved. Momentum cannot be created nor be destroyed. That's simple. It's similar to conservation of energy. कैसे बोलते हो conservation of energy? आप कहते हो energy cannot be created nor be destroyed. ये कहते हो momentum भी ऐसे ही है. Momentum cannot be created nor be destroyed. It remains constant before the action, after the reaction.
सेम। जैसे मैं जब वॉक करके आगे बढ़ता हूं, एक्शन दिया, रिएक्शन दिया, इन दोनों के बीच में मेरा मोमेंटम सेम था। वैसे ही तरह अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक और ऑब्जेक्ट है, बिफोर दी कोलिजन, अगर मैं इमेजिन करूं कि दोनों कोलाइड करने वाले हैं, दोनों जैसे मेरे हाथ है यहां पे, दोनों कोलाइड करने वाले हैं। सो बिफोर कोलाइडिंग जो मोमेंटम होगा मेरे दोनों हाथों का, आफ्टर कोलाइडिंग भी दोनों का मोमेंटम सेम रहेगा, टोटल मोमेंटम सेम रहेगा। इंडिविजुअल मोमेंटम चेंज हो सकते हैं लेकिन टोटल मोमेंटम चेंज रहेगा। जैसे मैं बहुत तेजी से आ रहा हूं और ये हाथ बस रखा गया, यहां पे टकराया, तो इस सिनेरियो में इनिशियल मोमेंटम थी टकराने से पहले, टकराने के बाद आप देख सकते हो कि दोनों की वेलोसिटी चेंज हो गई लेकिन टोटल मोमेंटम सेम रहेगा। कैसे, अब यहां पे देखना ध्यान से। तो ये मेरे बच्चों, दिस इज द केस ऑफ बिफोर कोलिजन। इमेजिन करो आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, एक बॉल है जिसका मास है ma, दूसरा बॉल है जिसका मास है mb। दोनों की इनिशियल वेलोसिटी है ua ub। तो इसकी मोमेंटम कितनी हुई, मास इंटू वेलोसिटी ma ua। इसकी वेलोसिटी, इसकी मोमेंटम कितनी हुई, mb ub। करेक्ट। तो टोटल मोमेंटम कितनी हुई बिफोर कोलिजन, दोनों को ऐड कर दो टोटल मोमेंटम मिल जाएगा। सो mb ma ua प्लस mb ub इज द टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन। तो इसको मैं कह सकता हूं इनिशियल मोमेंटम। करेक्ट, इसको मैं कह सकता हूं इनिशियल मोमेंटम, pi लिख दिया, यहां पे लिख देता हूं pi इक्वल टू क्या, वो ये कहता है कि आफ्टर द कोलिजन आल्सो मोमेंटम विल बी सेम, टोटल मोमेंटम विल बी सेम। सो आफ्टर कोलिजन व्हाट हैपेंड, दोनों के मासेस तो सेम रहेंगे, ऐसे थोड़ी है कि मासेस चेंज हो जाते हैं, मास तो सेम ही रहेगा लेकिन उन दोनों की वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो यहां पे क्या हो जाता है, वेलोसिटी MAVA हो जाता है वेलोसिटी फॉर ऑब्जेक्ट A, फॉर ऑब्जेक्ट B हो जाता है MBVB। करेक्ट, करेक्ट। सो नाउ व्हाट हैज हैपेंड, MAVA MBVB गॉट। So law of conservation of momentum says the total momentum before collision is equal to the total momentum after collision. So MAVA plus MBVB will be equal to your initial momentum. That is the conservation of momentum, and a lot of numericals come from this particular topic. A lot of numericals. A lot of numericals. So my dear students, I have taken a separate video for the numericals of forces and laws of motion, for first law also, second law also, third law also, conservation of momentum also, before this particular sessions. So kindly go and check them out if you guys want to be super duper amazing on those numericals. ठीक है, तो एक बार जाके चेकआउट कर लेना, मैंने बहुत सारे वेराइटीज के क्वेश्चंस कराए हैं। ठीक है, एक बार वीडियो चेकआउट कर लेना। आज का वीडियो वाज ओनली रिलेटेड टू द व्हाट आर द क्रक्स ऑफ दिस चैप्टर एंड दैट वाज इट। ठीक है बच्चों, so I hope all of you guys enjoyed today's session also. If in case you need any help, do let me know in the comment section below. And if you guys love this session, hit that like button, smash it up. मुझे लाइक बटन को टूटते हुए देखना है, इतना होना चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप ऑल ऑफ यू गाइस लव द वीडियो। इफ यू गाइस लव्ड इट, सब्सक्राइब टू द चैनल, डू नॉट फॉरगेट हिट दैट बेल आइकन राइट नाउ सो यू गेट नोटिफाइड एवरी सिंगल टाइम अ वीडियो इज बीन लॉन्च्ड। बिकॉज मिड टर्म्स आ रहे हैं, इसके बाद मेन आएंगे, इसके बाद 10th का क्लास आएगा, तो सारे वीडियोस आपको मिलने हैं ना। सो डू नॉट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकन, सब्सक्राइब टू द चैनल, like the video, also share the video as much as possible. ठीक है, और if in case you have any doubts, do let me know in the comment section below, and also do let me know how much you guys enjoyed today's session. ठीक है, on the comment section. I'll be waiting to see how many of you guys put the comments because I reply to each and every of my students comment. ठीक है, मिलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट सेशन में हम आएंगे जिसमें हम करेंगे मे बी मोशन इन 30 मिनट्स या तो साउंड इन 30 मिनट्स। क्रैश कोर्स कर लेते हैं पूरा सारे चैप्टर का 30 मिनट्स का, मजा आएगा। ठीक है, बताना मुझे कि आपको कौन सा चैप्टर चाहिए नेक्स्ट 30 मिनट्स के लिए। कूल, ओके। एंड इफ इन केस यू हैव टू डाउनलोड द नोट्स मेरे बच्चों, आपको पता है कि यू हैव टू जस्ट डाउनलोड द वेदांतु ऐप, वहां पे आपको यूट्यूब पे चल रहे सारे के सारे ऑल द नोट्स विल गेट इट राइट देयर। एंड ऑल्सो माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव स्टार्टेड अ टेलीग्राम ग्रुप where all the students are doing a lot of hangama. Go ahead and join the telegram group. The link you will get it in the comment section below. ठीक है, so bye bye guys, good night, take care, we'll see you guys in the next session. Until we meet the next time, this is Abhishek signing off. Enjoy your life, bye bye, take care.